કરવા જઈ રહ્યા છે એક એવા વ્યક્તિત્વની એવા દેશપ્રેમીની આપણે આજે વાત કરીશું. આપણે સૌથી પહેલા આ વ્યક્તિ વિશેનો એક વિશેષ અહેવાલ જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે એમની સાથે ચર્ચા કરીશું. સુરતના ભાડાના મકાનમાં રહી એસવીએનઆઈટીમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડની નોકરી કરતા જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર કે તેમનું સપનું હતું સેનામાં જવાનું, પણ કોઈ કારણસર તેઓ સેનામાં ન જોડાઈ શકાયા. પરંતુ સેના માટે કઈ રીતે ફાયદારૂપ થઈ શકાય તે માટે તેમણે હંમેશાથી પ્રયત્નો કર્યા અને દેશમાં જે કોઈ ન કરી શક્યું તે જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જરે કરી બતાવ્યું. જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર કે જેઓ 1914થી આજ રોજ સુધી જેટલા પણ યુદ્ધ થયા અને તેમાં જેટલા જવાનો શહીદ થયા તે તમામની માહિતી આમની પાસે છે. સેના માટે, શહીદો માટે અને શહીદોના પરિવાર માટે તેમણે ગૂગલ બાબાનું કામ કર્યું છે. જીતેન્દ્રસિંહ દ્વારા શહીદ પામેલા જે પણ વીર જવાન છે તેમની માહિતી એકઠી તેમના પરિવારને આપતા હોય છે. જ્યારે કોઈ વીર જવાન શહીદ થાય ત્યારે તેમના પરિવારને જીતેન્દ્રસિંહ પોતે પત્ર લખે છે અને દેશ માટે જ તેને કામ કર્યું છે તેની વીરતાને નમન કરે છે અને એક પત્ર શહીદ જવાના પરિવારને લખે છે. આ તેઓ વારંવાર કરતા હોય છે, તેથી શહીદના પરિવારને એવું લાગી રહ્યું હોય તે જાણે તેમના પરિવારનો એ જવાન જીવિત છે, જેથી કેટલાય લોકોનું મનોબળ તૂટતા બચે છે. मेरी जानकारी मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है. ये सब 18 कुंटल कागज है मेरे पास और करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ. जो 24 साल से पत्र लिखते हुए मेरे पास में 10,500 शहीद परिवारों के मोबाइल नंबर है, तो उन सभी नंबरों पे मैं बात करता हूँ. 15 अगस्त 26 जनवरी को ज़्यादा फैमिली से करता हूँ. राष्ट्रीय पर्व ही मेरे लिए सबसे बड़ा दिवस होते हैं. જીતેન્દ્રસિંહ દ્વારા શરૂઆતમાં પૈસાના અભાવના કારણે રેલવે સ્ટેશન ઉપર જે પેપર લોકો વાંચતા હોય છે ત્યારે તે પેપર વાંચી લીધા બાદ લોકો તેમની ઉપર જમવા અને ગંદકી સાફ કરવા માટે વાપરતા હોય છે. ત્યારે આ જીતેન્દ્રસિંહ આ પેપરને સાફ કરી તેમાંથી જો કોઈ શહીદોને લગતી માહિતી હોય તો તે એકઠી કરતા હોય છે અને તે પેપરનું કટિંગ સાચવતા હોય છે. આ જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર કોઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના હીરોને, કોઈ પોલિટિક્સના નેતાઓને નથી ઓળખતું, કોઈ ઉદ્યોગપતિઓને નથી ઓળખતું, પરંતુ દેશ માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દેનાર તમામ શહીદને ઓળખે છે. તમે શહીદ વીર જવાનનું નામ લ્યો અને જીતેન્દ્રસિંહ તમને તેનો ઇતિહાસ બતાવી દેશે. આ પ્રકારની માહિતી જોયા બાદ તેમને એક જ ઉપનામ આપવામાં આવી શકે છે, શહીદ જવાનના ગૂગલ બાબા. આપણે જોયું કે કઈ રીતે જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર એક અનોખી રીતે શહીદો માટેનું કલેક્શન ભેગું કરે છે. આ એમનો એક અલગ જ પ્રકારનો દેશપ્રેમ છે. આપણી સાથે ખુદ जितेंद्र सिंह गुर्जर जोड़ाई रहा है. बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आज हम आपके जो विशेष योगदान है आपका, जो शहीदों के लिए जो आप कार्य कर रहे हो, उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे. ये जो आपको कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, शहीदों के लिए जो जानकारी आप मुहैया करा रहे हैं, वो कब से आप कर रहे हो और किस तरह से आपको ये करने की प्रेरणा मिली? साल 1999 करगिल युद्ध के समय मैं अपने पुरखों की भांति सेना में ही शामिल होना चाहता था. मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का हूँ, वो सैनिक इलाका है. 99 में जब मैं भर्ती देख रहा था तब उसी समय कारगिल की लड़ाई चली और ये सब शहीद जवानों के अंतिम संस्कार, और उस समय ये सब मैंने आंखों से देखा. हर दिन समाचार पत्र में मैं शहीद जवानों की खबर पढ़ता था. फिर मैंने 15 मई को समाचार पत्र में पढ़ा जब ये फोर्स 8 रेजिमेंट के जवान अर्जुन राम करगिल में शहीद हुए, तो उनके पिता ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है. तभी फिर मैंने सोचा कि ये कोई स्मरणीय इतिहास है, इसे सजो कर रखना चाहिए. तो उस समय मैं खुद भर्ती देख रहा था. मैं बेरोजगार था, मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे समाचार पत्र लेने के लिए शहीद जवान की खबर वाला. तो मैं रेलवे लाइन पर मिलने जाता था, एक तरफ सुबह और दूसरी तरफ शाम को, और वहां से मैं शहीद जवानों की खबर न्यूज़पेपर से कलेक्ट करता था. फिर उसी समय मुझे समाचार पत्र में पढ़ा मैंने मनीराम शीतल गांव का, जो करगिल में शहीद हुआ था. तो
जवान के शहीद होने के बाद में उसकी चिट्ठी घर पर पहुंची। उसमें मनीराम ने लिखा था, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तभी से फिर मैंने ये प्रण किया कि जवान शहीद हो गया और इसका पत्र इसके शहीद होने के 20 दिन के बाद में घर पे पहुंचा है, तो ये शहीद जवान का अंतिम पत्र नहीं है। फिर तभी से मैं उनके माता पिता को ये 15 पैसे के जमाने से ये पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ। आज 10,500 शहीद परिवार से मेरा फोन पर संपर्क है। और ऐसे ये चीन युद्ध के शहीद जवानों के फोटो है। तो ऐसे मैंने आज मेरे पास में 13,400 शहीद जवानों के फोटोज हैं। 18 कुंटल मेरे पास में स्टेशनरीज है और 178 रजिस्टर में मैंने वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेके अब तक के 2,07,000 जवानों की जानकारी मैंने संग्रहित कर रखी है। और ऐसी ये मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। और ये राइफलमैन रिसालदार भगत सिंह नाम है इनका, 17 कोनाहर बेलवा गांव शेरगढ़ जिला राजस्थान की ये मूर्ति मैंने बनाई है। ऐसी 300 मूर्तियां मेरे संग्रह में मैंने बना के रखी है। मैं आने वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के बलिदान से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए ये सब संग्रह बनाया और देश इससे देशभक्ति की प्रेरणा ले। जितेंद्र सिंह जी, ये जो प्रेरणा आपको मिली है, बहुत कम लोग ऐसे प्रेरणा लेते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। आपको फौज में जाना था लेकिन आप किसी वजह से नहीं जा पाए। आज आप एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर सेवा दे रहे हैं सूरत के कॉलेज में, लेकिन फिर भी आप वक्त निकालकर ये सारी जानकारियां किस तरह से जुटा लेते हैं? आज आप बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की जो शहीद हुए हैं उनकी जानकारी आपके पास है और इस तरह से आप फोटो वगैरह संग्रहित करते हैं, तो कैसे समय मिल पाता है और किस तरह से आपको ये सारी जानकारियां मिल जाती है? मैं 1 इंच हाइट कम होने की वजह से सेना में शामिल नहीं हो पाया। तो मेरा एक ही बेटा है, वो पैदा हुआ जब एक जवान शहीद हुआ था, हरदीप सिंह, 13 सिख लाइट इन्फेंट्री, खंडाखेड़ा गांव करनाल। वो शहीद हुआ था, उसी के नाम पे मैंने मेरे बेटे का नाम रखा। मैं 1 इंच से सेना में जाने से छट गया। वो 15 वर्ष की उम्र में मेरे से 3 इंच लंबा हो गया। ये जानकारी मैं समाचार पत्रों से, और अब 24 वर्ष हो गए मुझे इकट्ठा करते हुए, तो मेरे मिलने वाले लोग भी सब यही हैं। तो मुझे बहुत जल्दी अगले दिन समाचार पत्र टीवी में प्रकाशित होता है, उसी दिन पता चल जाता है। और मेरी 8 घंटे की सिक्योरिटी की नौकरी के अलावा जो मेरा 16 घंटे का जो समय है वो मैं पूरा इसी में व्यतीत करता हूँ। और इस काम के लिए कठोर निष्ठा और देशभक्ति चाहिए। मेरा एक आंक 2010 में जब सीआरपीएफ के दंतेवाड़ा में 2010 फरवरी में 76 जवान एक साथ शहीद हुए थे, तब पत्र लिखने के ये क्रम मेरा टूट गया। हर दिन मैं 8-8, 10-10 पत्र लिख रहा था। और तीसरे दिन 9 फरवरी को मेरी ये आंख खराब हो गई, इसमें मोतियाबिंद है। तो मेरी निष्ठा कम नहीं हुई, क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसा बहुत 50 से ज्यादा लोग आ गया, बोले सर हम भी लिखेंगे, लेकिन 2, 4, 5, 10 पत्र लिखने के बाद में फिर किसी ने नहीं लिखा। तो ये काम मुझे ही करना है, ये इस काम के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और जब मुझे पता चला कि मेरी आंख खराब हो गई, तो मैंने 5,000 पत्र एडवांस लिख के रख रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई देश में कोई एक आध व्यक्ति कोई और भी हो जो इस काम को करे मेरे जाने के बाद में। अभी तक मुझे कोई मिला नहीं 24 साल से। ये धरोहर को रखने के लिए भी मैं एक शहीद हाल बनाना चाहता हूँ, जहाँ ये 18 कुंटल कागज मैं रख सकूँ। मेरे गांव में मेरा छोटा सा घर है, वहाँ रखने की जगह नहीं है। 2003-4 तक तो मैंने इसको कपड़े में प्लास्टिक में बांध के रखा। फिर 2008 तक मेरा बहुत सारा शहीद संग्रह, ये कागज स्टेशनरी, शहीदों की मूर्तियां सब चूहे खा गए, और रख रखाव के अभाव में सब ये पैक करके रख रखा है मैंने। फिर 2015 के साल में मैंने यहाँ सूरत से मैं भंगार में से पेटी लेके गया, और तब मैंने ये पुरानी पेटियों में सब पैक करके रख रखा है। उसमें लगाने के लिए अभी तक भी ताले नहीं है मेरे पास में। एक हाल बनाना चाहता हूँ मैं, जहाँ ये सब पूरी धरोहर को एक जगह रख सकूँ। बिल्कुल, बहुत उम्दा सोच है आपकी जितेंद्र सिंह जी। ये एक किस्सा हमने आपके बारे में सुना था कि 1962 के युद्ध में शहीद जवान के परिवार के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, और उस परिवार के काफी प्रयासों के बाद भी जब उसकी तस्वीर उनको नहीं मिली, तो वो तस्वीर उनको आपके जरिए मिल पाई।
वो किस्सा क्या है, वो किस्सा जानना चाहेंगे। हाँ, मेरे संग्रह में 13,000 और 400 फोटो हैं। ये पायोनियर सुजान सिंह 1962 चीन युद्ध को 21 नवंबर 1962 को नेफा में शहीद हुए थे। तो वहाँ 113 के लगभग ये पायोनियर शहीद हुए थे, 28 पायोनियर के। और उसी गांव का एक भीम सिंह नाम का जवान भी था पीछे रिजर्व में, जिसने देखा था कि सुजान सिंह आगे खड़ा हुआ है। पहले अटैक में ये सब जवान एक साथ शहीद हो गए। उसके बाद में फिर सुजान सिंह को किसी ने नहीं देखा। आज उसके घर पे उसकी लाई हुई एक लोहे की पेटी है पुरानी, जो पूरी फट चुकी है, 1961 की, और 2 अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए पत्र हैं। तो ये मेरे संग्रह से मैंने उसका फोटो पहुंचाया। पिछले साल मैंने 2 वर्ल्ड वार के फोटो पहुंचाए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के, और अब तक मैंने 50 से ज्यादा शहीद परिवारों के फोटो पहुंचा दिए। मुझे हजारों फोटो पहुंचाना है, लेकिन मेरा घर ये सिक्योरिटी की नौकरी पे चलता है, तो मेरी ड्यूटी पे एब्सेंट होती है। मेरे पास न तो जाने का कोई साधन है, न कोई किराया भाड़ा है, न छुट्टी है। मेरे पास प्राइवेट नौकरी से मेरा जीवन चल रहा है। अभी कल मेरे पास में करियादू गांव भिवानी से फोन आया, तो वो वर्ल्ड वार का एक जवान शहीद है, सांवरमल उसका नाम है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का 1914 का। उसका पोता उसका रिकॉर्ड खोज रहा है। तो वो सेना को उसने संपर्क किया, तो वहां से बताया कि हमारे पास आजादी के बाद का है, 1947 के बाद का। उसकी रेजिमेंट ने बताया 1947 से पहले का वर्ल्ड वार का गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास में है। तो उसका फोन आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसको बताया कि हाँ, तुम्हारे दादाजी की जानकारी मेरे पास में है और मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मैं जब दिवाली पे छुट्टी आऊंगा उस दिन दूंगा, जब ये मेरा 18 कुंटल कागज को तब मैं पूरा धूप में लगाता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि उस समय कीड़े काकोड़े से सब बचाने के लिए, तो मैं उस समय तुमको दे दूंगा। तो ऐसी बहुमूल्य जानकारी उनके परिजनों को दे के मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। मेरी राष्ट्रभक्ति सफल हो रही है कि मेरे 18 कुंटल कागज देश के काम आ रहा है, और ये परिजन अपने परिवार के सदस्य को देख पा रहे इतने सालों के बाद में। और मेरे पास में जो पायोनियर सुजान सिंह के जो फोटो थे, उनके साथ के शहीद हुए काफी जवानों के फोटोज है मेरे संग्रह में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप जो कार्य कर रहे हैं वो शायद सेना के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी शायद ना कर सके, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी जुटाना एक डिपार्टमेंट के लिए भी काफी मुश्किल होता है। और आप ये कार्य कर रहे हैं जो कि बड़ा काबिले तारीफ काम है, और ये कोई और ये जिम्मेदारी जैसे आप बता रहे थे कोई ले नहीं रहा है, लेकिन ये कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि जो जिम्मेदारी लेना किसी के बस का नहीं है। जितेंद्र सिंह जी, जिस प्रकार से आपने ये सारी जानकारी जुटाई है और आने वाले समय में भी आप जुटा रहे हैं, तो जो जानकारी आप संग्रहित करते हैं उसका आप जो म्यूजियम बनाने के लिए जो आप बता रहे हैं कि किसी हॉल में आप इसको रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस तरह की मदद चाहिए? आप किस तरह की हेल्प की अपेक्षा करते हैं? सरकार से करते हैं, किससे करते हैं? ये कोई मेरे पर ये क्राउड फंडिंग करे या कोई मेरे जीवन पे बुक लिख ले। पेंगुइन प्रकाशन ने भी मेरे जीवन पे बुक लिखने की बात करी थी, पर मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है। मैं 2015 में गांव में लाइट आई है, पेपर टीवी सिनेमा मैंने कुछ देखा नहीं। मैं शाम को 8-9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मेरा पुरानी शैली का जीवन है, बीमार कभी मैं होता नहीं। ज्यादा मेरा देश दुनिया से संपर्क नहीं है। मुझे इंजीनियरिंग छात्र ने मोबाइल चलाना सिखाया। ये पूरा जीवन मेरा देश सेवा में चला गया। आज मेरी उम्र 44 साल है, मेरी एक आंख खराब हो गई। 24 साल से मैं एक बहुत बड़े हेड क्लर्क की तरह ये सब काम कर रहा हूँ। घर परिवार बेटा घर वाले सब मेरे को ये सब पागल कहते हैं। आगे ये हाल बनाने के लिए कहीं से भी कोई मदद मिले, बस एक 15-20 फीट की एक जमीन हो और उसमें 4 दीवार खड़ी हो जाए, और उसमें मैं ये सब संभाल के मैं रख दूंगा ताकि इसको चूहे नहीं खाए। इसलिए मैं एक हाल बनाना चाहता हूँ और आने वाले नए भारत को सदा राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा देना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप इस तरह से जो संग्रहित यादें, जो लोगों की शहीदों की यादें आप संग्रहित कर रहे हैं, इस काम से मैंने 24 साल में सिक्योरिटी का 19 ड्रेस पहन लिया। ये साल पे साल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाते हैं,
हर जगह नौकरी मुझे सिक्योरिटी के फिजिकली और सब मापदंडों पे खरा उतरने के बाद में भी, अब तो मेरी उम्र हो गई, मुझे अप्रोच लगा के नौकरी मिलती है। लेकिन ये निस्वार्थ देशभक्ति मेरी सदा आबाद रहे। अभी ये 23,000 रुपए के मैंने फोटो प्रिंट कराए शहीदों के। आज भी मुझे मैं कोई अरे आपका आपका जो आवाज है वो म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। मदद आपकी आवाज म्यूट हो जा रही है, आप उसको अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जितेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आपके आपके ऑडियो अनम्यूट कीजिए जितेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जितेंद्र सिंह थे जो हमारे साथ अभी जुड़े थे। किसी तकनीकी खराबी के कारण हम अभी उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन हाँ फिर से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हम उनसे लगातार बात करते रहेंगे। जितेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है हमारे आपके पास? हाँ हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ साहब। हाँ, आपकी बीच में आवाज और वीडियो कट हो गई थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप ये चीजें बता रहे थे कि किसी तरह से कोई हेल्प मिल जाए और आप अपना जो संग्रहित जो साहित्य है वो आप उसको डिस्प्ले कर सके और संभाल सके। हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि बीच में एक शहीदों के लिए कार्यक्रम हुआ था, सूरत में आयोजित हुआ था, उसमें आपने बहुत बड़ी राशि डोनेट भी की थी। वो क्या पूरा मामला था? वो जब मैं ये सूरत SVNIT सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में मैं नौकरी करने के लिए गया, तो मेरे पास टूटी हुई साइकिल थी और मेरे सिक्योरिटी का फटा हुआ थैला और डंडा और टिफिन, बस और कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप ड्यूटी पर जाता और बाहर हो जाता गेट से छुट्टी के बाद में, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उस समय मेरा एक वीडियो आ गया, तो वो IT से पूरे 10,000 स्टूडेंट को एक साथ पता चला वहाँ पे। तो 500 बच्चे इकट्ठे हुए वहाँ के एडमिन के ग्राउंड में और वहाँ से मुझे बुला के लेके आए सिक्योरिटी के गेट से। और फिर बच्चों ने मेरे पैर छुए और फिर बहुत खुश हुए बच्चे और उन्होंने फिर 50,000 रुपये इकट्ठे किए। तो वहीं NIT के अंदर पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे गए वो, तो वहाँ पोस्ट कार्ड नहीं थे क्योंकि अब वो जमाने ही नहीं रहे पोस्ट कार्ड लिखने के। अब सब लोग नए जमाने के मोबाइल से बात करते हैं। तो डाक खाने ने गांधीनगर से प्रिंट करवा के और 1 लाख पोस्ट कार्ड दिए। बच्चे एक ट्रैक्टर का ट्रॉली भर के और पोस्ट कार्ड लेके आए और 3 महीने तक पूरे सूरत के स्कूली छात्रों से, बच्चों से और NIT से, पूरे शहर से 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखा है जवानों को। और मेरे इस राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होके 20 लाख रुपए भारत के वीर में उन्होंने दान किए शहीद जवानों के परिवारों के लिए। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं जो शहीद परिवारों के लिए आपने इतनी बड़ी राशि भी जुटाई और लोगों को संदेश भी भेजते पोस्ट कार्ड के जरिए, जो आजकल कोई नहीं लिखता है। वो कार्य आज भी आपका अविरत चालू है। आने वाले समय में आपकी क्या इच्छा है अभी, और क्या आप ज्यादा आगे करना चाहते हैं? मेरे पास में मेरा घर और जिंदगी चलाने के लिए सिक्योरिटी की नौकरी है और वो सैलरी भी काफी है मेरी। बस सिक्योरिटी के हिसाब से मेरा यहाँ रूम भी भाड़े का है, उतने में चल जाता है मेरा 12-13 हजार रुपये में। लेकिन ये जो शहीद हाल बनाने का ये मेरी हैसियत में शामिल नहीं। तो मैं एक जगह पे को स्टेबल करना चाहता हूँ, एक ही जगह पे रखूँ इसको जहाँ पे पूरा देश देख सके।
शहीद परिवारों को भी तकलीफ होती है जो मेरे से जानकारी मांगते हैं। अभी जैसे मैंने कल बताया कि करियादू गांव भिवानी से मेरे पास फोन आया था, जो उसके दादाजी की जानकारी मांग रहा है। उसका पोता ग्रैंडसन ही सीनियर सिटीजन है 70 साल का, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं दिवाली पे घर जाऊंगा जब दूंगा। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो मैं तत्काल देना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों को खुशी हो कि आज हमारे दादाजी का कहीं से इतना पुराना फोटो मिल गया, कहीं से इतनी पुरानी जानकारी मिल गई। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को मैंने जानकारी उपलब्ध कराई और मैं आगे भी कराता रहूंगा। लेकिन आज मेरा बनाया हुआ संग्रह मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ, और मेरा ये रेगुलर जो छोटा मोटा जो कुछ स्टेशनरी का खर्च है, इसके लिए भी मैं आम लोगों के पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड हूँ। ये ज्यादा मेरी हैसियत में शामिल नहीं। 1000-1500 रुपए तक तो मैं कर लेता हूँ मेरी सिक्योरिटी की हैसियत के हिसाब से, लेकिन एक हाल में बनाना चाहता हूँ जब पूरा देश इन चीजों को देखे। आज 13,400 फोटो है मेरे पास में शहीद जवानों के। ये कोई सेना के एक रेजिमेंट या एक बटालियन यूनिट के नहीं है, ये पूरे ऑल इंडियन आर्मी ऑल फोर्सेस के हैं। इसमें 50 से ज्यादा शहीद परिवारों के घर के माता पिता के चरणों की मिट्टी है। 4 साल पहले वो फटफटी बनाने वाली कंपनी को मेरी जानकारी हुई थी, तो उन्होंने ये सब मेरा संग्रह देखा और बोला हमारी फटफटी बनाने वाली कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। तो मैंने कहा मैं 19 साल से पत्र लिख रहा हूँ, इनके माँ बाप भी मुझे बुलाते बुलाते मर गए, मैं कभी किसी को मिल नहीं पाया क्योंकि ये मेरी हैसियत में शामिल नहीं। तो वो फटफटी बनाने वाले कंपनी वाले मुझे हवाई जहाज से लेके गए, शहीद परिवारों से मिलाया, और फिर आने के बाद में मुझे उन्होंने वो विक्रांता 71 का INS शिप से बनी हुई मोटरसाइकिल दी है। अभी मैं चलाना सीख गया हूँ ठीक ठाक, और अभी चला लेता हूँ उस गाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका कार्य है उसको सराहना मिलनी ही चाहिए, और जिस तरह से कंपनी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया वो बहुत ही उम्दा काम था उस कंपनी का भी। ये जो आपकी चाहत है, जो आपकी ख्वाहिश है कि आप एक म्यूजियम बनाए, एक ऐसे हॉल बनाए जहां पर ये सारी जानकारी एक जगह किसी को भी चाहिए तो वो मिल जाए, उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और आपका ये कार्य जो है वो अच्छे से हो जाए, ऐसी हम भी प्रार्थना करेंगे। जितेंद्र जी, एक चीज और जाननी है कि जिस प्रकार से शहीदों के जानकारी जुटाते हैं, जिसको जानकारी चाहिए उसको आप मुहैया भी कराते हैं, कैसे अनुभव रहे आपके इस पूरे दौर के दौरान? आपके अनुभव कैसे रहे? लोग आपको क्या कहकर संबोधित करते हैं, किस तरह से आपको देखते हैं? ये मेरे गांव में मेरे को 22 जुलाई को दैनिक भास्कर समाचार पत्र से पता चला था साल 2000 में कि दिल्ली में कारगिल विजय दिवस बनेगा, साल 2000 में पहली बार। तो ये सब कारगिल के 527 शहीद जवानों की जानकारी मेरे पास भी थी। सब मैं रेलवे लाइन से बीन के लाया था समाचार पत्र। तो मैंने वो समय में 8 आने की फोटोकॉपी होती थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो मेरे गांव का चंदू फोटोकॉपी वाला, उसने बोला तो अच्छा काम करता है, शहीद का फोटो है इसलिए 4 आने में कर दूंगा। तो वहां से मैंने सब फोटोकॉपी करा ली और मैं फोटो नगर के चौराहे पे लेके खड़ा था। तो पहली बार शहीद दिवस आया, मेरे पास टेबल, तंबू, मोमबत्ती, फूल, बाजा, ये सब मजमा लगाने का कोई सामान नहीं था, मेरे पास सिर्फ शहीद थे। मैंने आटे से चिपका रखे थे, गोंद भी नहीं था मेरे पास में। तो बाद में वहाँ बहुत सारे लोग आने लगे और मेरे ग्रामवासियों ने उस जगह का नाम बदल के और कारगिल चौक रख दिया है अब, और पूरे गांव वाले मुझे मेजर साहब के नाम से जानते हैं। और ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मजाक भी है। मैं साल में एक बार ही छुट्टी जा पाता हूँ क्योंकि मेरी प्राइवेट नौकरी है, मेरी जीवनचर्या और देशभक्ति इसी से चलती है। तो मैं साल में एक बार ही गाँव वालों को दिखता हूँ, तो गाँव वाले मुझे ओरिजिनल मेजर साहब समझते हैं, जिसको सुन के और मुझे फख्र होता है। सब गाँव वाले मुझे मेजर साहब कहते हैं। इतने सारे शहीद परिवारों से पत्र लिखने से बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी, आप सभी 2016 में मेरा एक पोस्ट कार्ड केरल कोझिकोड में पहुंचा था। तो वहाँ वो कर्नल साहब थे, उनका बेटा कैप्टन पानीकोट विक्रम मीडियम रेजिमेंट करगिल में शहीद हुआ था। तो मैंने उनको मेरा 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मिला, तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, हु आर यू, व्हाई आर माय सन्स नेम रिटन लेटर। तो मैंने कहा साहब मैं चौकीदार हूँ साहब, गुजरात में नौकरी करता हूँ, और मेरा ये सब बहुत बड़ा संग्रह है साहब, मेरे गांव में रखा हुआ है, और आपके बेटे का लड़ाई का फोटो भी है मेरे पास में संग्रह में।
तो कर्नल साहब बहुत खुश हुए, बोले प्लीज सेंड मी माय सन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका जो देश प्रेम है मैंने वो बहुत ही उम्दा है, और आपकी आपकी जो आपके पास जो जानकारी है वो अति मूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते। आप हमारे साथ जुड़े और हम इतनी सारी जानकारी हमारे साथ जो शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आने वाले समय में आप और अच्छी कार्य करें और प्रगति करें, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और कल और किसी सब्जेक्ट के साथ हम फिर आप मिलेंगे। ત્યાં સુધી રજા આપો। नमस्कार।